کربلا کی سرزمین اب خاموش ہو چکی تھی۔ وفا کے چراغ ایک ایک کر کے بجھ چکے تھے۔ خیموں میں سسکیاں تھیں، ریت پر شہادتوں کے نشان تھے، اور اب نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی آخری قربانی پیش کرنے کے لیے تیار کھڑے تھے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ راہ حق میں اپنا سب کچھ قربان کر چکے تھے۔ بھائی، بیٹے، بھتیجے، ساتھی، سب اللہ کی رضا پر نچھاور ہو چکے تھے، اور اب وقت تھا کہ کربلا کا تاجدار اپنی جان بھی اپنے رب کے حضور پیش کر دے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ خیمہ اہل بیت میں تشریف لائے تو دیکھا کہ آپ رضی اللہ عنہ کے بیمار فرزند سیدنا زین العابدین رضی اللہ عنہ، جو کئی دنوں سے شدید بخار میں مبتلا تھے، جنہیں بھوک، پیاس، سفر کی تکلیف اور اپنے پیاروں کی شہادتوں نے بے حد کمزور کر دیا تھا، یہاں تک کہ کھڑے ہوتے تو جسم مبارک کانپنے لگتا، مگر اس حالت میں بھی وہ نیزہ تھامے میدان میں جانے کے لیے تیار کھڑے تھے۔ امام حسین نے اپنے نور نظر کو سینے سے لگایا، پیار کیا اور فرمایا، بیٹا، ابھی تمہارا وقت نہیں آیا۔ تم نے ان بے سہارا بہنوں اور اہل بیت کی حفاظت کرنی ہے، تم نے انہیں سلامتی کے ساتھ وطن تک پہنچانا ہے۔ یہ فرما کر امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنی مبارک دستار اتار کر سیدنا زین العابدین رضی اللہ عنہ کے سر پر رکھی اور محبت و صبر کے اس پیکر کو دوبارہ بستر پر لٹا دیا۔ اس کے بعد امام حسین رضی اللہ عنہ اپنے خیمے میں تشریف لے گئے، سامان کھولا، قبائے مصری زیب تن فرمائی، اپنے نانا جان حضور اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقدس امامہ سر پر سجایا، سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی سپر پشت پر رکھی، اپنے بھائی امام حسن رضی اللہ عنہ کا ہتھیار کمر سے باندھا، اور اپنے والد شیر خدا حضرت علی کی تلوار ذوالفقار ہاتھ میں تھام لی۔ جنتی نوجوانوں کے سردار، شہیدوں کے آقا، راہ خدا میں سب کچھ قربان کرنے کے بعد اب اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے تیار ہو چکے تھے۔ پھر امام حسین خواتین کے خیمے میں تشریف لائے۔ جیسے ہی اہل بیت کی مقدس خواتین نے یہ منظر دیکھا تو صبر کے بند ٹوٹ گئے، چہرے زرد پڑ گئے، آنکھوں سے آنسو موتیوں کی طرح گرنے لگے، اور خیموں میں ایک خاموش قیامت برپا ہو گئی۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے سب کو آخری سلام کیا اور خیمے سے باہر تشریف لے آئے، مگر باہر آ کر جب امام رضی اللہ عنہ نے دائیں بائیں نگاہ دوڑائی تو میدان خالی نظر آیا۔ نہ کوئی بھائی باقی تھا، نہ بھتیجا، نہ بیٹا، نہ وہ وفادار ساتھی جو ہر وقت آپ کے ساتھ کھڑے رہتے تھے۔ آج کربلا کا تاجدار تنہا تھا، بالکل تنہا۔ امام حسین گھوڑے پر سوار ہوئے اور میدان کربلا کی طرف بڑھنے لگے۔ تپتی ہوئی ریت پر شدید بھوک اور پیاس کی حالت میں اپنے پیاروں کی جدائی کے زخم دل میں لیے، نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 20,000 کے لشکر کے سامنے ڈٹ کر کھڑا تھا، اور پھر امام حسین رضی اللہ عنہ کی گونجتی ہوئی آواز بلند ہوئی، اگر تم میرے خون کے بغیر باز نہیں آتے تو آؤ، اپنی خواہش پوری کر لو، اپنے بہادروں کو ایک ایک کر کے میرے مقابلے میں بھیجتے جاؤ، اور دیکھ لو کہ شجاعت حسینی کیا ہوتی ہے اور حیدری وار کیسے ہوتے ہیں۔ میدان کربلا میں اب وہ جنگ شروع ہو چکی تھی جس کا ذکر آنے والی صدیاں بھی کانپتے دل کے ساتھ کرنے والی تھیں۔ لشکر یزید کے وہ جنگجو جنہیں آخری وقت کے لیے بچا کر رکھا گیا تھا، اب ایک ایک کر کے امام حسین کے مقابل آنے لگے۔ انہی میں ایک مشہور جنگجو تمیم بن قحطبہ بھی تھا۔ وہ غرور سے بھرا ہوا اپنی بہادری کے قصے سناتا اور تکبر سے بھری آواز میں للکارتا ہوا میدان میں اترا۔ اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ وہ زخمی چیتے کی طرح امام حسین رضی اللہ عنہ پر جھپٹا، مگر نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار بجلی کی طرح چمکی، اور اگلے ہی لمحے اس کا سر جسم سے جدا ہو کر خاک پر جا گرا۔ اس کے غرور کا انجام کربلا کی ریت پر بکھرا پڑا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر جابر بن قاہر آگے بڑھا۔ وہ غرور سے سینہ پھیلائے چیخ کر کہنے لگا، شام اور عراق کے بہادر میری شجاعت کے قصے سناتے ہیں، آج تک کوئی میرے سامنے ٹھہر نہیں سکا۔ یہ کہہ کر اس نے امام حسین رضی اللہ عنہ پر تلوار سے حملہ کیا، مگر امام رضی اللہ عنہ نے نہایت مہارت سے اس وار کو خالی جانے دیا، اور پھر ذوالفقار کا ایسا وار کیا کہ اس کا بازو کٹ کر زمین پر جا گرا۔
वो खौफजदा होकर पीठ फेर कर भागा, लेकिन मौत उसके सामने खड़ी थी। इमाम हुसैन ने दूसरा वार किया और उसका सर तन से जुदा हो गया। ये देखकर बदर बिन सुहेल गुस्से से कांप उठा। वो उमर बिन साद के पास जाकर चीखने लगा, तुम किन बुज़दिलों को हुसैन रजी अल्लाह अन्हु के मुकाबिल भेज रहे हो, जो 2 लम्हे भी ठहर नहीं पाते। फिर गुरूर से बोला, मेरे 4 बेटे हैं, जिसे चाहो मैदान में भेज दो। आज तुम देखोगे कि जंग कैसे लड़ी जाती है। उमर बिन साद ने उसके बड़े बेटे को इशारा किया। वो तेजी से घोड़ा दौड़ाता हुआ इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु के सामने आ पहुंचा। हुसैन रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, काश तेरा बाप खुद मैदान में आता, ताकि अपनी बदकिस्मती को अपनी आंखों से देखता। फिर इमाम रजी अल्लाह अन्हु की तलवार चमकी और एक ही वार में उस नौजवान का खात्मा हो गया। जब बदर ने अपने बेटे को जमीन पर गिरते देखा तो उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वो गुस्से से पागल होकर नेजा लहराता मैदान में उतरा और पूरी ताकत से इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु पर हमला किया। मगर इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु ने अपनी ढाल से इस वार को इस शान से रोका कि उसके नेज़े का फल टूटकर जमीन पर गिर पड़ा। वो गुस्से में चीखा, नेज़ा फेंका और तलवार संभाल ली। तब इमाम हुसैन ने फरमाया, बातें बनाना आसान है, मगर बहादुरी मैदान में साबित होती है। होशियार, अब तेरा वक्त भी पूरा होने वाला है। ये फरमाकर इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु ने तकबीर बुलंद की और तलवार का ऐसा वार किया कि बदर के जिस्म के 2 टुकड़े हो गए। इसके बाद भी शाम और कूफा के बड़े बड़े जंगजू शेर की तरह ढाड़ते हुए मैदान में आते रहे, मगर जो भी इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु के सामने आया वापस जिंदा न जा सका। शेर खुदा हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु के लाल ने उस दिन शुजात की वो मिसाल कायम की कि करबला की जमीन दुश्मनों के लाशों से भर गई। रईते करबला ताज़ा खून से सुर्ख हो चुकी थी और हर तरफ शिकस्त खुर्दा गुरूर बिखरा पड़ा था। लश्कर यजीद में अब खौफ फैल चुका था। हर तरफ बेचैनी थी। सिपाही एक दूसरे से कहने लगे, अगर यही हाल रहा तो हैदर कर्रार का ये शेर हम में से किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगा। आखिरकार फैसला हुआ कि अब एक एक करके मुकाबला करना मुमकिन नहीं, चारों तरफ से हमला किया जाए। और फिर ज़हरा रजी अल्लाह अन्हा के चांद पर जुल्म और सितम के बादल टूट पड़े। हजारों सिपाही एक साथ इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु की तरफ बढ़े और हर तरफ से घेर लिया। मगर इस हुजूम के दरमियान भी नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ गूंजी, ए जालिमों, अगर तुमने इब्ने ज़ियाद और यजीद की खुशी के लिए औलाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खून बहाने का फैसला कर लिया है, तो हमने भी अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा के लिए हर कुर्बानी देने का इरादा कर लिया है। इसके बाद इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु दुश्मनों के इस समंदर में अपनी तलवार के जौहर दिखाने लगे। जिस तरफ रुख करते दुश्मनों की सफ़ें टूट जाते और लाशें बिखर जाती। दुश्मन खौफजदा हो चुके थे, हर दिल पर हैबत तारी थी। लश्कर कूफा के एक सिपाही अब्दुल्ला बिन अम्मार बाद में कहा करता था, खुदा की कसम, मैंने कभी ऐसा शख्स नहीं देखा जिसके अहले बैत, दोस्त और साथी सब शहीद हो चुके हों, फिर भी वो इतनी बहादुरी, हिम्मत और साबित कदमी से लड़ रहा हो जैसे हुसैन रजी अल्लाह अन्हु लड़ रहे थे। जब वो हमला करते तो लोग इस तरह भागते जैसे भेड़िए को देखकर बकरियां भागती हैं। इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु लड़ते जाते थे और फरमाते जाते थे, ए मेरे कत्ल के लिए जमा होने वालों, खुदा की कसम, मेरे बाद तुम किसी ऐसे शख्स को कत्ल नहीं करोगे जिसका खून अल्लाह के गज़ब को मेरे खून से ज्यादा भड़काए। अल्लाह मुझे इज्जत देगा और तुम्हें जलील करेगा और तुम पर अजाब नाजिल होगा। जब उमर बिन साद और उसके साथियों ने देखा कि एक तन्हा हुसैन ने शाम और कूफा के बड़े बड़े बहादुरों को खाक में मिला दिया है, तो उन्होंने नई साजिश तैयार की। फैसला हुआ कि अब सामने आकर जंग नहीं की जाएगी, बल्कि चारों तरफ से तीरों की बारिश की जाएगी, और जब हुसैन कमजोर हो जाएं तो नेज़ों से हमला किया जाए। फिर हुक्म दिया गया और हर तरफ से तीरों की बारिश शुरू हो गई। इमाम हुसैन का घोड़ा शदीद जख्मी हो चुका था, उसमें मजीद चलने की ताकत न रही। इमाम रजी अल्लाह अन्हु एक जगह रुक गए और अब हर तरफ से तीर आ रहे थे। जालिमों ने नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक जिस्म को जख्मों से भर दिया। नूरानी बदन खून में नहा गया। इसी दौरान खूली बिन यजीद ने एक तीर चलाया
जो इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु के मुबारक सीने में जा लगा। अर्श के मेहमान इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु घोड़े से जमीन पर तशरीफ ले आए। फिर शिमर ने आगे बढ़कर तलवार का वार किया और उसके बाद सुनान बिन अनस ने नेजा मारा जो जिस्म मुबारक के पार निकल गया। इमाम हुसैन ने आखिरी लम्हों में बारगाह इलाही में सजदा किया और अपने रब से जा मिले। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये क़यामत खेज मंजर देखकर सैयदा ज़ैनब रजी अल्लाह अन्हा खैमे से बाहर निकल आईं। बेकरार होकर मैदान की तरफ दौड़ी और रोते हुए पुकारने लगी, हाय मेरे भाई, हाय मेरे सरदार, काश आसमान जमीन पर गिर पड़ता। उस वक्त उमर बिन साद वहीं खड़ा था। सैयदा ज़ैनब रजी अल्लाह अन्हा ने उसे देखकर फरमाया, ए उमर बिन साद, अबू अब्दुल्लाह कत्ल किए जा रहे हैं और तू खड़ा देख रहा है। अगरचे दुनिया की लालच ने उसके दिल को सख्त कर दिया था, मगर आखिर वो रिश्तेदार भी था। सैयदा ज़ैनब रजी अल्लाह अन्हा की दर्द भरी आवाज़ सुनकर वो भी बेख्तियार रो पड़ा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, मगर शर्मिंदगी से उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ फेर लिया। इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु के विसाल के बाद भी जुल्म की प्यास ख़त्म न हुई। खूली बिन यजीद आगे बढ़ा ताकि नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर मुबारक को जिस्म अतहर से जुदा करे, मगर जैसे ही करीब आया उसके हाथ कांपने लगे, दिल लरज उठा और वो खौफजदा होकर पीछे हट गया। फिर उसका भाई आगे बढ़ा और उसने उस जुल्म को अंजाम दिया। बाज़ रिवायतों में आता है कि शिमर ने यह गुस्ताखी की। इसके बाद दरिंदा सिफत लोग इमाम हुसैन के जिस्म मुबारक से सामान उतारने लगे। किसी ने जब्बा ले लिया, किसी ने नालैन, किसी ने इमामा, किसी ने चादर और किसी ने ज़र्रा और अंगूठी तक न छोड़ी। मगर जुल्म की इंतहा अभी बाकी थी। संगदिल दुश्मनों ने नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के जसद मुबारक को घोड़ों की टापों से रोन डाला और जिस्म अतहर को जख्मी कर दिया। फिर वो जालिम अहले बैत के खैमों की तरफ बढ़े। खैमों को लूटा गया, पर्दादार खवातीन को बेसहारा कर दिया गया। बच्चों की सिसकियां, बीबियों की आहें और जलते हुए खैमों का धुआं करबला की फजा में फैल गया। उस दिन करबला के मैदान में जुल्म की ऐसी आंधी चली कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के गुलशन के फूल बिखर गए। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु का घर उजड़ गया। सैयदा फातिमा रजी अल्लाह अन्हा का बाग वीरान हो गया। अहले बैत रजी अल्लाह अन्हुम के चराग बुझा दिए गए। बच्चे यतीम हो गए, बीबियां बेवा हो गईं और अहले बैत रजी अल्लाह अन्हुम को कैदी बना लिया गया। ये दर्दनाक वाकया 10 मुहर्रम 61 हिजरी जुमा के दिन पेश आया। उस वक्त इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु की उम्र मुबारक 55 से 56 साल के दरमियान थी और आपने अपने नाना जान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या हुआ वादा सच कर दिखाया। आपने दीन हक की खातिर अपना घर, अपने साथी, अपने बेटे, अपने भाई और आखिर में अपनी जान तक कुर्बान कर दी, मगर बातिल के सामने सर न झुकाया। कयामत तक आने वाले हक के रास्ते पर चलने वाले लोग इमाम हुसैन की उस अजीम कुर्बानी को याद रखते रहेंगे। खशर तक छोड़ गए एक दरख्शंदा मिसाल हक परस्तों को न भूलेगा ये एहसान हुसैन। हश्र तक छोड़ दे एक दरख्शंदा मिसाल हक परस्तों को न भूलेगा ये एहसान हुसैन। करबला की दास्तान यहाँ ख़त्म नहीं होती। अभी अहले बैत के सब्र का सफ़र बाकी है। अभी कैद और जंजीर की रातें बाकी हैं। अभी दमिश्क के बाजार बाकी हैं और अभी सैयदा ज़ैनब रजी अल्लाह अन्हा की वो ललकार बाकी है जिसने यजीद के दरबार को हिला कर रख दिया था। अगर आप चाहते हैं कि आफ्टर करबला की ये दर्दनाक और तारीखी दास्तान भी इसी सिनेमाटिक अंदाज में जारी रहे तो हमारे साथ इस सफ़र में जुड़े रहिए, क्योंकि अभी तारीख के कई ज़ख्म बाकी हैं और कई हकीकतें अभी सामने आना बाकी हैं।